Hi guys, so CAT notification is already out and we are in the month of August. So those of you who are in the middle of your preparation, you guys know that this is the time to intensify your preparation. But if you are the one who has not started the preparation yet and is in two minds that whether should I look for CAT 2020 or aim for CAT 2021, then this video might actually help you to make that right choice. Alright, so before we start, let me actually give you a brief introduction about myself. My name is Deepak Jarial. I'm a physics honors and MBA from Symbiosis. I have been teaching since 2006. So that actually gives me roughly 14 plus years of teaching experience. And I have given CAT multiple times and I've scored 99 plus percentile in the section that I teach. So I bring to the table the perspective of a student as well as the faculty. So how can you guys reach us? Just go to the Play Store and download the Unacademy Learning app. In that, choose Plus and CAT course, get subscription. And that get a subscription, you would be routed to this particular page. And if you want to avail a discount of 10%, you can choose to use the code DJ10. And among these list of options, which option is the best for you, we shall be discussing towards the end of the preparation. All right, so let's get started. We have CAT 2020 in front of us. As per the notification, the D-Day is on 29th November 2020. So that actually gives us roughly 4 months, right? So the big question right in front of us is, can it be done, right? Now, based on my experience, I believe yes, it can be done. Now, idea of this presentation would be to evoke that belief in you as well. All right. So let's get started. I'll just be focusing more on quantitative aptitude because that happens to be my area of specialization. So we'll go step by step. एक एक करके देखते हैं. We'll not rush through the things, and we'll try to understand how and what are the strategies that we can use to reach up the score that we want and eventually reach our dream college. All right, so we all know in the section there are three sections primarily: VA, DILR, and quantitative aptitude. Now ये जो है this is CAT 2020. Now यहाँ पे जो pattern है VA, DILR, QA, there are 34 questions in VA, DILR में there are 32 questions, quant में there are 34 questions. ना ये जो pattern है मतलब in total 100 questions देना और per section जो है 60 minutes देना, ये जो pattern है CAT has been following since 2015. Now, so gone are the days when CAT used to be unpredictable and people used to say कितने questions आएंगे, कितना time मिलेगा per section और कितने sections होंगे even. So that time has passed. So CAT has become more and more predictable. If you look closely, even some of the topics उनका जो पूरा सेगमेंटाइजेशन है वो भी थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो गया है. तो थोड़ी देर में वो सब देखते हैं, बट पहले हम लोग पैटर्न देख लेते हैं. तो मैंने कहा 2015 से ये पैटर्न चला आ रहा है, 2019 तक यही चला. तो वी हैड थ्री सेक्शंस, वीए, डीएलआर एंड क्यूए. नाउ 34 क्वेश्चंस में से मुझे कितने क्वेश्चंस करने चाहिए टू गेट अ पर्टिकुलर परसेंटाइल? लेट्स लुक एट इट. तो वी नो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरे पास टोटल कितने टॉपिक्स होते हैं. तो लेट्स गिव यू अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स. ये सारे टॉपिक्स को मैंने अलग अलग कैटेगरीज में सेगमेंटाइज किया हुआ है: अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स. नाउ हैव अ लुक एट दीज टॉपिक्स. इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपने कभी ना पढ़ा हो? तो एज यू कैन सी, जो यहाँ पे जो टॉपिक्स हमसे पूछे जा रहे हैं, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हमने 10th तक के मैथ्स में पढ़ चुके हैं. All right, so there is no calculus, as in there is no integration, there is no differentiation. तो चाहे आप इंजीनियर हो या फिर एक नॉन इंजीनियर हो, चाहे आप बी कॉम हो, बी ए हो, बीबीए हो, या फिर एक इंजीनियर हो, या फिर एक ऐसे हो जिसने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दिया है, बट ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपने कभी ना कभी पढ़ रखे हैं. हाँ, ये हो सकता है कि काफी टाइम बीत चुका हो उनको पढ़े हुए, लेकिन ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं. So this is nothing is new to you as far as this particular segment is concerned. I hope it is clear. So ये थोड़ा इन टॉपिक्स पे ध्यान दीजिएगा. ये जो मैंने सेगमेंटाइजेशन किया है उस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स, उनमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड हो रहे हैं. ऑलराइट, सो ये टॉपिक्स का जो लिस्ट है इसका देने का एक पर्टिकुलर पर्पस है. आई जस्ट वांट यू टू कीप दिस इन माइंड. सो अरिथमेटिक में वी हैव नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क,
जिसमें पाइप्स एंड सिस्टम्स भी इंक्लूड होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेजेस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। तो ज्योमेट्री में ये सारे टॉपिक्स हैं। Are you getting it? Algebra में we've got simple equations, quadratic equations, special equations, modulus and inequality, functions, maxima, minima, sequence series. तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके algebra में इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपने कभी ना कभी पढ़े हुए हैं, तो देर इज नथिंग न्यू है ना जो आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। ओके, नाउ हैविंग सेड दिस, एक बार थोड़ा सा ना टॉपिक वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं ओवर द इयर्स। ओवर द इयर्स मैंने यहाँ पे 2 साल का डेटा लिया है, 2018 और 2019 का ना। 2018 और 2019 का डेटा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 16 15 17 सब में यही पैटर्न मोर और लेस यूज हो रहा है, तो क्योंकि ये लेटेस्ट है तो इसको हम लोग अपना एक सैंपल सेट बना सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, समझने के लिए। सो अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, ये सेगमेंटेशन आपको याद ही होगी। नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम दीज सेगमेंट्स। अरिथमेटिक में 2018 में देवर 15 क्वेश्चंस, एल्जेब्रा में देवर 9, ज्योमेट्री में 7, मॉडर्न मैथ्स में 3। अरिथमेटिक अगेन ज्योमेट्री सॉरी कैट 19 में देवर 14, एल्जेब्रा में 5, ज्योमेट्री में 7 एंड मॉडर्न मैथ्स में देवर 8 क्वेश्चन। जस्ट एक बार इन पे ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला हमारे डिस्कशन का पार्ट, ठीक है। सो अरिथमेटिक में देवर 15 क्वेश्चंस एंड 14 क्वेश्चंस इन 18 19, और मोर और लेस 17 16 15 में इन सारे ईयर्स में यही रफली जो रहा है कि 13 से 15 क्वेश्चंस आपको अरिथमेटिक सेक्शंस में मिलेंगे, राइट। नाउ ज्योमेट्री में आप देखिए 6 to 7 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे फ्रॉम 15 16 17 इवन टिल 19। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है, दिस इज गोइंग टू बी बिकमिंग द मेजर पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। ऑलराइट, नाउ अभी एक और चीज जो मुझे डिस्कस करनी है बिफोर एक्चुअली वी गेट टू द एग्जैक्ट थिंग, इट्स अ स्कोर वर्सेस परसेंटाइल थिंग। तो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल मतलब लॉट पीपल आस्क मी कि सर इतना क्वेश्चंस आता है तो इतने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन करें टू गेट अ पर्टिकुलर परसेंटाइल। तो जस्ट गिव यू अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि थोड़ा सा कैट जो है प्रिडिक्टेबल हो गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लेट्स लुक एट, वी गॉट 34 क्वेश्चंस, हम जानते ही हैं कैट में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेगमेंट में। तो उस 34 क्वेश्चंस में से मैंने कितने क्वेश्चंस किए थे 2018 में? तो 2018 में आई गॉट 99.46 और मेरा परसेंटाइल था 99.46 और मेरा स्कोर था 59.13। अब 59.13 को मैं रफली 60 का स्कोर ही मान लेता हूँ। तो 60 का स्कोर आप जानते हैं, पर क्वेश्चन यू गेट 3 मार्क्स, पर राइट अटेम्प्ट यू गेट 3 मार्क्स, और गलत करने पे आपके 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। अभी तक अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन करने पे कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, थैंकफुली, राइट। सो पर क्वेश्चन अगर मुझे 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो अगर मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसकी 100% एक्यूरेसी आ रही है, तो मुझे ना 20 क्वेश्चंस करने चाहिए, बिकॉज 20 into 3 would give us 60। अगर मैं रफली 85% एक्यूरेसी रखता हूँ, जो कि एक आइडियल सिनारियो होता है, जैसे कि मैं रखता हूँ 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें से 21 करेक्ट और रॉन्ग हो जाएंगे 3, तो 21 into 3 वुड गिव अस 63, और 3 गलत होने की वजह से मेरा 3 डिडक्ट हो जाएगा और मेरा स्कोर अभी भी कितना बन जाएगा, 60, दैट इज 63 minus 3। तो मतलब अगर मेरा अटेम्प्ट है 20 से लेकर 24, मेरा एक्यूरेसी वेरिएंस है वो 85% से लेकर 100% तक अगर मेरा एक्यूरेसी वेरिएंस है, तब मैं 99 प्लस परसेंटाइल एम कर सकता हूं ना। ये ध्यान रखने वाली बात है कि मेरे को 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़े, जिसमें से मेरे 21 सही और 3 गलत। आर यू गाइस गेटिंग इट? मतलब मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं टू गेट 99 प्लस परसेंटाइल। आई होप इट इज क्लियर। तो ये दो नंबर्स आपने ध्यान रखने हैं, 24 अटेम्प्ट्स या फिर 20 अटेम्प्ट्स, मतलब मेरा स्कोर था 60। और मैं ये सिर्फ 2018 की ही बात नहीं कर रहा हूं, 2019 में, 2017 में, 15 में, इन सब में मोर और लेस इतना ही आपको अटेम्प्ट रखना पड़ेगा टू गेट 99 प्लस परसेंटाइल। आर यू गाइस गेटिंग इट? नाउ लेट्स गेट टू द एग्जैक्ट थिंग। नाउ मैंने आपसे कहा था कि मेरे प्रीवियस स्लाइड में अगर आप देखेंगे, तो प्रीवियस स्लाइड में मेरे पास टोटल कितने क्वेश्चंस थे अरिथमेटिक के? देवर 15 क्वेश्चंस इन 18 एंड 14 क्वेश्चंस इन 19। और ज्योमेट्री में, अब मैं आपको दिखाई देता हूं वो स्लाइड, ये रही वो स्लाइड, है ना। सो आप देखेंगे कि अरिथमेटिक में देवर 15 क्वेश्चंस एंड यहाँ पे 14 क्वेश्चंस, यहाँ पे ज्योमेट्री में 7 क्वेश्चंस, यहाँ पे भी 7 क्वेश्चंस।
एल्जेब्रा जो है वो थोड़ा वेरी करता है, जैसे यहाँ पे 9 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं, मॉडर्न मैथ्स में 3 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 8 क्वेश्चन थे, तो ये वेरी कर रहा है। कंसिस्टेंट क्या है गाइस? अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री। एंड माइंड इट, मैं 2018 और 19 की बात नहीं कर रहा हूँ, 17, 15, 16 इन सब में यही आपको पैटर्न देखने को मिला कि 13 से 15 क्वेश्चंस आपको अरिथमेटिक में मिलते हैं और 6 to 7 क्वेश्चंस आपके ज्योमेट्री में मिलते हैं। तो अगर मैं लोअर एंड भी ले लूं कि जैसे कि अरिथमेटिक के 13 क्वेश्चंस और ज्योमेट्री के 6 क्वेश्चंस, तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 19 क्वेश्चंस। तो 19 क्वेश्चंस सिर्फ दो एरिया से आ रहे हैं। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? नाउ ये मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, थोड़ी देर में हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप ध्यान दीजिए कि दो सेगमेंट्स आर डोमिनेटिंग द एंटायर पेपर। So can you afford to let go of these sections कि चलो इसको बाद में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? एल्जेब्रा में देयर आर 9 क्वेश्चंस, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा अनसर्टेन है, बट ये तो फिक्स्ड है ना। अगर हायर एंड पे जाएंगे तो 15 प्लस 7 हो गया, कितना हो गया? 22 क्वेश्चंस। और मैंने आपको बताया था कि 20 से लेकर 24 अटेम्प्ट्स, मतलब विद 85% से लेकर 100% एक्यूरेसी वाले जो हैं, आप 99 प्लस परसेंटाइल एम कर सकते हैं। नाउ अब आप देखिए मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं कहना चाह रहा था कि जो मेरा प्रिपरेशन है वो कैसा हो। मेरा जो प्रिपरेशन है उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच होनी पड़ेगी एट दिस स्टेज, बिकॉज वी आर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। नथिंग अबाउट इट। अगर मैं जनवरी में होता तो जनवरी में आपको कहता अच्छा ठीक है, आराम से पढ़ो, समझ के करो, हर चीज पढ़ो। अभी भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई चीज छोड़ दीजिए, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब जनवरी में होते, थोड़ा सा मेरे पास ज्यादा टाइम है टू रीड थिंग्स, स्टडी थिंग्स, रिविजिट दोज थिंग्स। अभी मेरे पास वो टाइम कम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मुझे जो है अपना जो प्रिपरेशन है उसको कैसे रखना है? एग्जाम सेंट्रिक। तो अगर मैं आपको बोलूं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके आपको डिफिकल्ट लगता है, तो आप जो है इस पे एक हफ्ता बिता दीजिए। आपने एक हफ्ता बिताया और बहुत अच्छे से पढ़ा और उसको आपने एक एक स्ट्रांग उसमें अपना होल्ड कर लिया। लेकिन अगर आप उसमें एग्जाम में वेटेज देखेंगे तो यू हैव मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। एंड इट्स नॉट जस्ट लास्ट ईयर गाइस, दिस इज 16, 17, 18, 19, इवन 15 ऑल्सो। तो 2 क्वेश्चंस पढ़े मैंने। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो वहीं पे मेरे पास जो अरिथमेटिक सेक्शन आ रहा था, जिसमें मेरे पास टॉपिक्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, आपका टाइम एंड वर्क, एवरेज मिक्सचर्स, एलिगेशन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनसे मेरे पास लगभग लगभग 13 से 15 क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो कैन आई अफोर्ड टू मिस आउट ऑन देम? एब्सोल्युटली नॉट। ऑब्वियसली यहाँ पे तो मुझे जो प्रिपरेशन अपनी रखनी है वो रखनी है एग्जाम सेंट्रिक। आई कैन नॉट एम्फसाइज इट मच मोर क्लियरर देन दिस कि जो अभी क्योंकि मेरे पास टाइम कम रह गया है, तो मेरी जो एग्जाम का जो फोकस होगा वो, या मेरी प्रिपरेशन का जो फोकस होगा वो उस तरह से होगा कि जिस तरह से मेरा एग्जाम निकल जाए। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? although I'm not saying to leave out some topic, I'm all saying कि आप चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिए। तो क्योंकि आपके अरिथमेटिक के 13 से 14 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्योमेट्री के 6 to 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो इन दोनों एरियाज पे आप स्पेशल फोकस करेंगे। तो कब से कब तक करेंगे? सो कैसे स्टार्ट करें? सो मैंने एक प्रॉपर स्लाइड बनाया है, जैसे इसमें मैंने रखा है कि वीव गॉट, आपको पढ़ना कैसे हमने पढ़ना है, जैसे यहाँ पे है, मैं मिटा देता हूँ। तो मेरे को पढ़ना है कंसेप्ट्स और फिर उनको अप्लाई करना है, फिर टेस्टिंग करनी है। तो कंसेप्ट्स का मतलब ये है कि मेरे को ना, अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला स्टडी करूं कि यार ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेरियस अदर फॉर्मूलेज, या फिर टाइम एंड वर्क में सो एंड सो फॉर्मूला लगता है, परसेंटेज में सो एंड सो फॉर्मूला लगता है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कैट में आज तक क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए हैं। व्हाट हैज बीन रिपीटेड इज द टाइप्स। तो जब तक आपको कंसेप्ट चीजों का क्लियर नहीं है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो यू कैन नॉट सेल थ्रू द पेपर। बिकॉज होगा क्या कि आपको क्वेश्चंस वही पूछा जाएगा लेकिन अलग तरीके से पूछा जाएगा। तो अगर आपने कंसेप्चुअली क्लैरिटी नहीं लिया है उस चीज के बारे में, देन इट वुड एक्चुअली कंफ्यूज यू। तो हमको फोकस करना है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं अगर तो।
ठीक है, तो मेरे पास टाइम कितना है, तो अगर मैं इसको टाइम फ्रेम में बांट दूं तो दिस इज लेट्स से 6 अगस्त, अगर आप 7 अगस्त से भी स्टार्ट करते हैं, 6 या 7 अगस्त से स्टार्ट करते हैं, तो आप मान लीजिए एक रफ एक एस्टिमेट ले लीजिए कि मेरे को 20th सितंबर तक, ठीक है, 20th सितंबर तक इन सारे टॉपिक्स का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले लेना है ना। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगा कैसे, ठीक है, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आने के लिए मेरे पास ना क्वेश्चन को दो पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब आपने एक बार क्वेश्चन का एक बार आंसर निकाल लिया, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जो है निकालने के बाद आपको उसमें पूछना पड़ेगा व्हाई, ठीक है, व्हाई एंड, या फिर पूछ लीजिए हाउ, कैसे आया और क्यों आया। जो दूसरा जो आपको सवाल पूछना पड़ेगा वो होगा व्हाट इफ, कि चलो ये तो आंसर आ गया, अगर इस तरह से पूछा होता तो क्या होता। तो आई वॉन्ट यू टू लुक एट द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव, तो एक बार वो क्वेश्चन खुल जाएगा आपके सामने, सो इट बिकम्स ऑल द मोर इंटरेस्टिंग फॉर अस। वो जो मेरे पास जो टॉपिक होगा वो एक लॉन्गर रन के लिए मेरे दिमाग में रह जाएगा। नहीं तो क्या होगा, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका सोल्यूशन खत्म हो जाएगा, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा चेंज करेगा, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। So what we want is, I want you to have conceptual clarity of all the topics. Are you guys getting my point? Now when you apply those questions, जो भी आपने concepts apply रखे हैं, उसको आप break करेंगे sectional tests में, ठीक है। तो जैसे आपने concepts करे तो उनको आप अप्लाई कीजिए। जैसे कि मैंने पढ़ तो लिया, मैंने कोई जब मैंने सवाल पढ़ा तो उसको मैंने अप्रोच लिया, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, आंसर निकाला। बट क्या मुझे कैट में स्टेप्स के मार्क्स मिल रहे हैं? स्टेप्स के मार्क्स तो ऑब्वियसली नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लेट द नंबर बी एक्स अप्रोच चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी। सो एप्लीकेशन में मुझे क्या करना है, जब मैं सेक्शनल टेस्ट दूंगा तो उस जो भी मैंने पढ़ा है उसको एक टाइम्ड फॉर्मेट में करूंगा। तो जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक 30 मिनट का सेक्शनल टेस्ट ले लेते हैं जिसमें मैं 15 क्वेश्चन रखता हूँ। तो 15 क्वेश्चंस में से मुझे अपना अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज करना है। Are you getting my point? I'm not saying you have to attempt all the 15 questions. You have to maximize the attempts. कैट में भी वही होता है ना, जब मैं आपसे कहा कि 34 में से अगर मुझे 24 क्वेश्चंस करने हैं तो मैंने ये थोड़ी कहा कि फर्स्ट 24 क्वेश्चंस करने हैं। Are you getting my point? So you have to study, मतलब आपको पढ़ना तो है ही, कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, बट ऑल्सो यू हैव टू स्टडी कि जो भी मैंने पढ़ा है उसको एक टाइम्ड फॉर्मेट में कैसे लाया जाए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ आवर प्रिपरेशन जो मुझे पर्सनली लगता है वो है टेस्टिंग। अगर आप कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन थोड़ा सा इधर उधर हो भी, टेस्टिंग में अगर आपका स्ट्रांग होल्ड है तो कैट में आप एक स्ट्रांग कैंडिडेट बन जाते हो। टेस्टिंग का मतलब क्या है कि आपको सेम लेवल ऑफ कंसंट्रेशन रखना है फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट सेक्शन टिल द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट सेक्शन। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन जो वेरिएंस है वो उसमें अगर आपने ऊपर नीचे हो गया देन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सो यू नीड टू नो कि मुझे कॉन्सेंट्रेशन लेवल मेंटेन रखना है फॉर हाउ लॉन्ग, भाई 3 आवर्स। आजकल 3 घंटे की पिक्चर भी नहीं बनती है, ठीक है। सो हम लोग पिक्चर हॉल में भी ब्रेक के साथ पिक्चर देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप 3 घंटे की पिक्चर देखते भी हो तो ठीक है, या फिर बीच में फोन रखते हैं, फोन उठा लेते हैं, जो कि नॉट एडवाइजेबल, बट एनी हाउ। तो 3 आवर्स तक सेम लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रखना, ठीक है, इट्स ऑल्सो अ चैलेंज इन इटसेल्फ एंड इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस, ठीक है। तो टेस्टिंग में आप तीनों सेक्शंस के ऊपर आप वर्क करेंगे कि 60 मिनट्स में जो भी मैंने पढ़ा है उसको मुझे किस तरह से उस पर्टिकुलर सांचे में ढालना है। तो मेरे पास टेस्टिंग में मुझे ना, मेरे को लगता है कि रफली आपको 15 मिनिमम मार्क्स लेने चाहिए। तो अब 15 फुल लेंथ टेस्ट जब आप लेंगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू, बिकॉज जब आप 15 मार्क्स ले लेते हैं तो आपको कैट से डर नहीं लगता, मतलब दैट प्रेशर इज ऑफ यू। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो इतना जितना आप सीरियसली उस मॉक को लोगे तो उतना ही आपको कैट उतना ज्यादा दैट प्रेशर सिचुएशन वुड नॉट अराइज इन द एग्जाम फॉर यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये फुल लेंथ मुझे मॉक टेस्ट लेने हैं एटलीस्ट 15, ठीक है ना। फुल लेंथ मैंने मॉक टेस्ट ले तो लिए, लेकिन लेने के बाद मुझे जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम करना है वो है एनालिसिस। दिस वर्ड कैन नॉट हैव एनी अदर ऑल्टरनेट, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है एज फार एज प्रिपरेशन इज कंसर्न। एनालाइज करना, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज, आपके वीक एरियाज क्या थे, आपने गलती कहाँ पे की, आपने जो गलती की उसको नेक्स्ट पेपर में सुधारना है। ये सारे काम कैसे करेंगे आप? यू हैव टू एनालाइज द पेपर, ठीक है। सो जो लोग वेटरन्स हैं, जो लोग जिन लोगों ने इस एग्जाम में अच्छा किया है,
वो लोग यही कहते हैं कि अगर आप 3 घंटे का पेपर दे रहे हो तो लगभग 3 से 4 घंटे तक का एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इन दैट पर्टिकुलर जर्नी विल बी विद यू, ठीक है, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। बट ये आपको अभी जो है खुद से जो मैं आपको स्टडी प्लान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लीजिए, उसके बाद उसको एक शॉर्ट शॉर्ट सेक्शनल टेस्ट में आप अपने उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझिए, फिर आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेना है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इसके बाद लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ मच टाइम शुड बी डिवोट, कि मुझे दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। नाउ कैट थोड़ा सा इन सब प्रिपरेशन बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। आपको ना यू डोंट हैव टू क्वांटिफाई योर प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू स्पेंडिंग, यू हैव टू क्वांटिफाई द प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू सॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने 6 घंटे पढ़ाई की और मैंने सिर्फ 20 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, देन दैट इज नॉट समथिंग दैट शुड बी डूइंग, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एट दिस स्टेज आपका टारगेट होना चाहिए फॉर क्वांट, लेट्स से 40 क्वेश्चंस एवरी डे। तो 40 क्वेश्चंस, 40 क्वांट क्वेश्चंस करने हैं, चाहे मुझे टाइम ज्यादा लगे कम लगे, व्हाटएवर द टाइम इज, आई नीड टू हैव 40 क्वेश्चंस एवरी डे, राइट। तो जैसे जैसे आप टॉपिक्स बढ़ाते जाएंगे, जैसे आपने आज मान लीजिए रेशियो प्रोपोर्शन शुरू किया, फिर आपने सिंपल इक्वेशन शुरू किया, फिर आप आए मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे, फिर आए आप परसेंटेजेस पे, तो ये आपके पास बंच ऑफ टॉपिक्स बन गए। फिर बाद में उन चीजों को आप एक मिक्स बैग बना के उन 40 क्वेश्चंस का मिक्स बैग बनाइए, ताकि आपको एक चीजों, नहीं तो भूल भूल जाते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा, फिर परसेंटेज पढ़ा, फिर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, फिर उसके बाद आई मैं जब फिर से रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देखा, आई फॉरगॉट। तो जैसे जैसे आपके पास टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे, यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ मिक्स बैग एंड डिजाइन योर एंटायर डे का स्टडी प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। आर यू गाइस गेटिंग इट? नाउ जो मेरे को सबसे ज्यादा, जैसे मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि अरिथमेटिक सेक्शन जिसमें 13 से 14 क्वेश्चंस आते हैं, ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन लगता है एज फार द एग्जाम इज कंसर्न। बाकी टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इस पे काफी कुछ डिपेंड हो जाता है। 13 से 14 क्वेश्चन अगर एक ही एरिया से आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। एंड एक और चीज जो इसमें इंटरेस्टिंग है वो ये है कि थोड़ा सा आपका जो पेपर है वो अभी ना नॉन इंजीनियरिंग स्पेसिफिक हो गया। मतलब ऐसा नहीं था, पहले तो क्या था कि जो पेपर था वो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए बनता था, देयर वाज ह्यूज फोकस ऑन अलजेब्रा, राइट। तो कैट ने कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि विल बी क्योंकि उनके आप देखेंगे कि तो बैच साइज देखेंगे तो 70 to 80% इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। तो उनको भी इंडस्ट्री को जवाब देना है कि मुझे मेरे मेरे बैच में सीए कहाँ है, मेरे बैच में बी फार्म वाले लोग कहाँ हैं, फार्मेसी के पढ़े हुए लोग कहाँ हैं, या होटल मैनेजमेंट वाले लोग कहाँ हैं। तो उन्होंने देखा कि उनका जो एग्जाम है वही जो है थोड़ा सा स्क्यूड टुवर्ड्स इंजीनियर, ठीक है। तो इसलिए कॉन्शियस डिसीजन है टू इंक्लूड मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम अरिथमेटिक। ना अरिथमेटिक में टॉपिक्स क्या आ रहे हैं? परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये अपना सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक्स आर सम ऑफ द फेवरेट्स विद नॉन इंजीनियर्स, राइट। इंजीनियर्स भी पसंद करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन नॉन इंजीनियर्स ने ये सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। जैसे बीकॉम में, बीबीए में सारे टॉपिक्स उन्होंने फिर से पढ़े हुए हैं, तो दे हैव सम आइडिया अबाउट द टॉपिक्स, ठीक है। तो 13 से 14 क्वेश्चंस इन इस पूरे सेगमेंट में से आ रहा है, अरिथमेटिक सेगमेंट्स में से आ रहा है। तो अरिथमेटिक सेगमेंट में एक और जो इंपॉर्टेंट क्लीशे जो मुझे यहाँ पे नजर आता है वो ये है कि आपका जो टॉपिक है, जैसे आप देखेंगे कि उसमें एक टॉपिक है परसेंटेजेस। उसको मुझे एक टॉपिक बोलना गलत हो जाएगा इसलिए कि परसेंट मैं बोलूं कि मैंने परसेंटेज टॉपिक फिनिश कर लिया है, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू से। बिकॉज परसेंटेज आप उसमें स्पेसिफिकली परसेंटेज से क्वेश्चन बना सकते हैं। उसमें आप टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी आप परसेंटेज के क्वेश्चन डाल सकते हैं। आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में, या प्रॉफिट एंड लॉस में, या एवरेजेस, मिक्सचर्स, एलिगेशंस में ह्यूज अमाउंट ऑफ यूसेज ऑफ परसेंटेजेस आता है। सो परसेंटेज ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, बट परसेंटेज का एप्लीकेशन थ्रू आउट अरिथमेटिक है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो फर्स्ट थिंग जो आपको अपना जो अरिथमेटिक प्रिपरेशन में जिसमें जो फोकस करना है वो ये है परसेंटेजेस। सो गेट इट डन विद दिस गाइस, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट प्री रिक्विजिट है कि आप जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आपने स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो कुछ प्री रिक्विजिट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। बट परसेंटेजेस के ऊपर मैं आपको पहले से एम्फसाइज कर रहा हूं कि दिस इज समथिंग दैट यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन फर्स्ट। You getting my point?
नाउ व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स दैट आई वांट? कितना भी ऑर्थोडॉक्स साउंड करे, यू नीड टू नो योर टेबल्स गाइस, यू नीड टू नो योर टेबल्स, बिकॉज हम लोग ना नंबर्स आइडेंटिफाई करना जान जाते हैं इससे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत पहले ना एफएमएस का एक खुद का पेपर होता था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि a into b is equal to what was that 133, and how many integral positive integer solutions exist? ठीक है, सो a into b is 133, तो लॉट ऑफ पीपल थॉट, बट जिसको मालूम है कि 133 होता है 19 सेवन सा, अरे गेस गेटिंग माय पॉइंट, और 19 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है, तो बहुत जल्दी जल्दी आप पेयर्स सोच पाते हो। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बताओ टेबल्स क्या है, ठीक है, या 20 तक के टेबल्स सुनाओ, ठीक है, बट यहाँ पे टेबल्स जानने से क्या होता है, हमको ना नंबर्स आइडेंटिफाई बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो कितना भी ऑर्थोडॉक्स साउंड करेगा, इज यू नीड टू नो योर टेबल्स फ्रॉम 1 to 20, एंड डोंट गिव अस दिस एक्सक्यूज कि सर टेबल्स करने की क्या जरूरत है, एग्जाम में कैलकुलेटर तो मिलता ही है, ठीक है, एग्जाम में कैलकुलेटर है, ठीक है, बट ध्यान रहे वो एक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है, ठीक है, और एट द सेम टाइम मैंने ये नहीं कहा कि कैलकुलेशंस के लिए आप उनको यूज मत कीजिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जो नंबर्स आइडेंटिफिकेशन है, इससे काफी हेल्प हो जाती है गाइस टेबल से, ठीक है, सो वर्क ऑन योर टेबल्स, स्क्वायर्स of the values. I need to know your square, guys. This is something that you're supposed to know. ठीक है, आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, आपके एवरेजेस, मिक्सचर्स, एलिगेशन में, इवन टाइम स्पीड डिस्टेंस में, या आगे जाके अलजेब्रा में इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो बार बार कैलकुलेटर के पीछे क्यों जाना, तो अगर मेरे पास 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स मेरे को पता है, तो दैट एक्चुअली हेल्प्स, ठीक है। ये जो आपको रेंज बता रहा हूँ, इसका भी इंपॉर्टेंस है, जो हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट ये रेंज पे यू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये मेरा प्री रिक्विजिट है, स्टार्ट करने से पहले, एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये सब चीजें अपने हाथ में हम लोग रख लेंगे, ठीक है। क्यूब्स, ऑब्वियसली क्यूब्स मुझे पता होने चाहिए, 1 से लेकर 15 तक, इतना मैं आपको लेवरेज दे सकता हूँ, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 1 से लेकर 15 तक वुड बी वेरी मच हेल्पफुल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं फिर से कह रहा हूँ, फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट्स ऑफ परसेंटेजेस, ठीक है, मैं इसको मिटा के अच्छे से दिखा देता हूँ। फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट्स ऑफ परसेंटेजेस, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट? जैसे हम जानते हैं ना, 50% ऑफ 40 कितना है, 50% ऑफ 40 इज 20, तो आपने ये थोड़ी किया 50 इंटू 40/100, आपने क्या किया 1/2 ना, तो 1/2 इज 50% of 40, तो इट इज फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ 40। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो जैसे मैं आपको शुरू से कह रहा था कि परसेंटेजेस के ऊपर आपको स्पेशल फोकस डालना है, ये बड़ा ध्यान रहे, कि क्योंकि पूरा जो अरिथमेटिक है उसमें उसकी समझ लीजिए एक तरह से बैकबोन है परसेंटेजेस। तो इफ यू आर थ्रू विद देयर फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट्स, आई थिंक अब बहुत ज्यादा काम आपका जो है हल हो सकता है इजीली। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो मैंने एक पर्टिकुलर चार्ट जो है, आपको जहां तक आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो 1/2 से लेकर 1/15 तक यू नीड टू नो योर फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट्स। जब गाइस मैं फिर से आपको मैं एम्फसाइज कर देता हूँ कि ऐसा कोई पूछेगा नहीं कि बताओ 1/3 कितना होता है या 1/4 कितना होता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा 28.56% ऑफ 63 फॉर एग्जाम्पल ना, 28.56% ऑफ 63 आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, बट अगर आप देख पा रहे हैं कि 1/7 इज 14.28, तो 2/7 कितना होगा, इधर भी इंटू 2 हो जाएगा ना गाइस, अगर इधर इंटू 2 हो रहा है तो इधर भी इंटू 2 कर दीजिए, तो हो जाएगा 28.56%, right? So it's basically 2/7 of 63. That comes out how much, guys? 18. It's faster than the calculator, guys. And it's not just that. Trust me, ये जो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट जो मैंने आपको चार्ट बना के दिया है, उसका यूज सिर्फ यहीं तक, कैलकुलेशंस तक ही लिमिटेड नहीं है, ठीक है। आपका यूज, इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये तो बहुत एलिमेंट्री लेवल पे है, ठीक है, तो इसका यूज जो है इससे बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा, ठीक है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दिस पर्टिकुलर चार्ट, ठीक है, और साथ ही साथ हम इनके इक्विवेलेंट्स भी पढ़ना शुरू कर देंगे, जैसे कि 1/3 होता है 33.33, तो 2/3 कितना होगा 66.66, है ना, जैसे कि 1/4 होगा 25, तो 2/4 की तो जरूरत नहीं क्योंकि वो 50 हो जाएगा, तो 3/4 कितना होगा 75%, सो एंड सो फॉर। तो ये हम लोग आगे आगे आने वाली क्लासेस में अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, बट ये मेरा प्री रिक्विजिट है। सो बिफोर वी बिगिन विद द सेशंस, यू नीड टू नो दिस पर्टिकुलर थिंग्स। आई होप इट इज क्लियर गाइस।
तो हमने जो है जस्ट कैट चैनल जो अभी जस्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर चैनल फ्रॉम 7th of August, and all areas and strategies would be covered. So we'll be covering from the basics till the what strategy should be working, should you be working, because हमारे पास टाइम कम है। तो जैसे मैंने आपको शुरू से कहा, एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन चाहिए मुझे भी, ठीक है। तो मेरे को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेटेजी सेशंस हम लोग लेंगे मोस्टली अन अकेडमी प्लस पे, बट विल बी अवेलेबल ऑन YouTube as well, or for revisers. All right. So I'll just repeat the process again for you. So you just have to go to the Play Store and download the Unacademy Learning app. और वहां पे जाके प्लस में जाएंगे आप, आपको कैट कोर्स सेलेक्ट करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके आपको ये सारे लिस्ट मिलेगी। अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो यूज दिस कोड, दैट इज DJ10, तो आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। नाउ इनमें से कौन सा जो है हमारे लिए मोस्ट सुटेबल रहेगा? तो इनमें से मेरे पास है 6 मंथ्स का ऑप्शन भी है, 12 मंथ्स का भी ऑप्शन है। हाँ, यहाँ पे मेरे पास इंटरेस्टिंग जो चीज ये है कि 6 मंथ्स मैं इसलिए कह रहा हूँ, 6 मंथ्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने 3 मंथ्स भी कह सकता था, क्योंकि कैट तो लगभग 3-4 महीने बाद ही है। तो 6 मंथ्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैट नवंबर में होने वाला है। कैट के बाद कौन सा एग्जाम है? कैट के बाद अराउंड ही होता है IFT, लगभग 20 दिन के बाद होगा स्नैप, लगभग 1 महीने के बाद होगा जैट, है ना? फिर उसके बाद आएगा आपका MHCT। तो ये एग्जाम्स जो है चलते रहेंगे, एंड दीज आर ऑल, जितने भी एग्जाम्स हैं इनमें सब में जो है पैटर्न है। मतलब जो मेरे पास जो टॉपिक्स आते हैं या फिर जो सेगमेंटाइजेशन है, 3 जो सेक्शंस आते हैं जो कैट में आते हैं, इन सभी एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ये जो यूजफुल रहेगा मेरे आगे आने वाले एग्जाम्स में भी, नॉट जस्ट फॉर कैट। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो आप या तो 6 मंथ्स कोर्स चूज कर सकते हैं या फिर 12 मंथ्स कोर्स चूज कर सकते हैं। दोनों में प्राइस डिफरेंस जो है ज्यादा नहीं है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी सेकंड ईयर में है, जैसे अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे BA BCom BSc, अगर आप सेकंड ईयर में हैं, तो यू कैन चूज दिस 24 मंथ्स का कोर्स, क्योंकि अभी आपके पास टाइम ज्यादा है। तो आपके पास टाइम है तो हम लोग चीजें एक बार पढ़ के फिर रिवाइज करके फिर दोबारा पढ़ के फिर से रिवाइज करके, जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिपरेशन का, ठीक है, उस पर भी ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास, अगर आप सेकंड ईयर में हैं या फिर इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में हैं, तो यू मस्ट चूज दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। सो माई कोड इज अगेन DJ10, ठीक है। तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, सो 10% ऑफ वुड बी प्रोवाइडेड टू यू। तो आपको पूरे इस सब्सक्रिप्शन पैटर्न उस पैकेज में आपको मिलता क्या क्या है? तो ऑब्वियसली लाइव क्लासेस तो हैं ही, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे भी हैं, यूट्यूब पे भी विल बी गेटिंग द लाइव क्लासेस, यू कैन इंटरैक्ट विद द एजुकेटर्स, ठीक है। अब इस पे हमारे पास चैट ऑप्शंस भी रहते हैं। तो वी गॉट लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, ठीक है, जहाँ पे, और हम लोग टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, जब से मैं बात कर रहा था ना शुरू में कि एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट दोगे, फिर हम लोग टेस्ट एनालिसिस करेंगे कि यार ये वाला क्वेश्चन जो है, इसकी जगह पे हम लोग ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैंने कहा कि आपको देयर आर 24 क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं QA में, लेकिन शुरू के 5 क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम वाले ने डिजाइन ही इस तरह से किए हैं कि वो आपका आधा से पौना घंटा कंज्यूम कर जाएंगे, ठीक है। So is it wise enough? Was it wise enough to pick up those 5 questions, or should I have skipped those questions and moved to a question which is taking a lesser time? Because मेरे पास टाइम नहीं है, 60 मिनट्स का ही डोमेन है। Are you guys getting it? पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए, पूरा सेक्शन सॉल्व करने के लिए सिर्फ सिर्फ 60 मिनट्स हैं। तो उस टाइम को मुझे ना बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो मुझे उस टाइम पे मैथमेटिशियन नहीं बनना है, ठीक है ना। मुझे उस टाइम पे एक लॉजिकल प्लेयर बनना है, एक मैनेजर की तरह सोचना है कि यार मेरे पास टाइम कम है, तो मुझे ये वाला क्वेश्चन करने में मुझे 15 मिनट लगेंगे, ये वाला क्वेश्चन करने में छुड़ाए। तो इसलिए तो आपको पता है ना, एग्जाम में एक ऑप्शन भी रहता है, मार्क फॉर रिव्यू, है ना, कि व्हेन यू, इफ यू डोंट वांट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन राइट नाउ, यू कैन, अगर आपको लगता है आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन आपको, आपने ये खुद से ये डिस्कवर किया कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो यू मार्क फॉर रिव्यू, यू कम बैक टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप यू गेट दिस गाइस। तो ये ध्यान रहे कि हम लोग जो है यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस और आपको टेस्ट सीरीज देने वाले हैं, ठीक है। और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम अपने पास डाउट जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास डाउट्स हैं और वो पाइल अप होते गए, जैसे कि मैंने आज पढ़ा फिर मैंने छोड़ दिया, फिर क्वेश्चंस पाइल अप होते गए, फिर नया टॉपिक पढ़ा, फिर नए टॉपिक के क्वेश्चंस, तो ये पाइल अप होते जाएगा। तो इस चीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं, तो विल बी हैविंग लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस एज वेल, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो पाइल अप ना हो, आपको सॉल्यूशंस देन एंड देयर मिलते जाएं। ऑलराइट।
ठीक है, सो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, तो ये जो DJ10 है जो मेरा कोड है, तो इफ यू वांट टू अवेल द 10% ऑफ, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, फिर से DJ10। थैंक यू सो मच।